Hello everyone, welcome back to the channel. So here we're starting with the analysis for 4th of November 2023. So Supreme Court says that difficult to press for the women's quota before the Lok Sabha poll. So here basically implementation ki we talk about the implementation of this act that is being talked about. So Supreme Court he was basically saying कि जो अभी next general elections होने वाले उससे पहले इस कोटा को implement करना is going to be difficult. So implementation के around बाकी भी concerns थे जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है कि वुमेन कोटा के अंदर भी क्या सब कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन है लाइक SC ST वुमेन है या इवन उसमें भी और पर्टिकुलर कैटेगरी होनी चाहिए फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या नहीं. सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट एंड इम्प्लीमेंटेशन में अनदर कंसर्न इज जो हमारा नेक्स्ट सेंसस मतलब डीलिमिटेशन के अराउंड जो चैलेंज है दैट इज कि नेक्स्ट जो सेंसस होगा 2026 वाला उसके बाद ही डीलिमिटेशन वुड बी कैरिड आउट जो जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें सो दैट वुड बी पॉसिबल आफ्टर 2026. तो उसके अराउंड एक डिबेट है कि इतना लंबे टाइम पीरियड के बाद एक तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ है एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ऑलमोस्ट अ डेकेड आपको वेट करना पड़ेगा. So the same thing has been basically highlighted by Supreme Court also. So here let's see कि और कुछ important चीज अगर highlight की गई है. So government has assured the parliament that the census and delimitation it would be carried out soon after general elections in 2024. So जो even जो current census है that is also pending, that was again delayed or postponed because of COVID-19 circumstances. So that's there, and this is the 106th Amendment Act of the Constitution, जिसको हम popularly we call it as the Women's Reservation Bill. So 33% quota reservation would be there for women in Lok Sabha and the state assemblies. However, it is not, it won't take effect immediately. So this is there even for the state assemblies also. And अगर हम पंचायती राज institutions या local level पे urban local bodies में बात करें, so there we already have the 1/3 reservation for women there. So this is all about it. अगर आपको यहाँ पे और कुछ important and new point add करना है तो you can go ahead. No, Mansi, you can continue. ठीक है. Then this we took up yesterday Mahadev app के around जो concern है ED is robbing this thing and basically हम यहाँ पे बात कर सकते हैं criminalization of politics. Even जब elections हो रहे हैं तो उसमें how black money indirectly भी उसको कैसे infuse किया जा रहा है. So that is the point of debate. Okay, इसको हम डिटेल में लेंगे. Famous YouTuber has been booked for supplying venom. So कौन सी act would be there and which all authorities are involved here. So he's been booked under the Wildlife Protection Act and sent to judicial custody. So judicial custody and इसके अराउंड भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. इस पे क्वेश्चन आ चुका है. So इसको हम इन डिटेल लेंगे. So this is the act under which has been booked, Wildlife Protection Act 1972, which is a non-bailable offense and attracts a jail term of up to 7 years and to 14 days of judicial custody. So police custody, judicial custody, make a difference. This has also been discussed before. And an NGO also, People for Animals. This is an NGO which is run by BJP MP, Menka Gandhi. So you can, like, for us, the name of the NGO can be important. So the sting operation was carried out along with the officers of the forest department. So all 5 accused, they were present at the spot, and 20 ml of snake venom that was also seized from the premises. So
Basically this venom it has been sent for testing so as to ascertain कि क्या इसको psychotropic nature या purpose के लिए use किया जाता था, तो even possibility of जो psychotropic substances act है that can be also it can come into play अगर इस चीज को confirmation मिल जाती है. So Narcotics Control Bureau, that is important. And earlier also this was यहाँ पे case की details mentioned है जो हुआ है, so that is not so important, but this act and the bureau is important, their functions, their nature, whether it is a statutory body. So you guys can confirm अगर like you can provide us more information about this particular topic. नहीं मानसी, ठीक है, we'll have to confirm. तो प्रेरणा हम्म, she can look into Narcotics Control Bureau, nature क्या है, whether it is a statutory body या फिर can look into constitutional body है. Mansi, it is a statutory body under the Narcotics and Drug Act, so it is not a constitutional body. Okay. And um, one or more information, the act is narcotic drugs and psychotropic substances. This act came in the year 1988 and इंडिया सिग्नेटरी भी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक कन्वेंशन है नारकोटिक ड्रग्स की 1961 में वो साइन की गई थी और उसी के बाद से हमारे यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो कि आई थिंक कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो ये कुछ जानकारी इसके बारे में. और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है कि 2 सैंड बाउज, पाइथन एंड रैट स्नेक, all of them they fall under boas. this category. Boas, sorry, they fall in the category of endangered species. So this is the entire case. ओके, सो यहाँ पे एक अच्छी काइंड ऑफ एक्सरसाइज की जा रही है और बोल सकते हैं मॉक ड्रिल टाइप ऑफ चीज की गई है. सो ऑफिशियल्स जो है दे गेट इन ब्लाइंड फोल्ड सो एज टू चेक कि जो स्पेशली एबल्ड पीपल है उनको क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या उनके लिए एक्सेस करना प्रीमाइसेस को, इज इट इजी, इज इट बेसिकली inclusive जब हम बात करते हैं. So MCD officials, they are doing this basically an exercise to understand the needs of the disabled people. So this is being done. And अब चाहे बेसिकली पार्क्स की बात करो, गार्डन्स को इंक्लूसिव बनाने की बात करो, सो उसके लिए हमारे पास क्या यूनिवर्सल डिजाइन है या नहीं, और क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. एंड दैट्स देयर. So we have this basically this was done in collaboration with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, as well as we have the Center for Accessibility, which is built Environment Foundation, Inbuilt Environment Foundation. तो आप लोग कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पे? नहीं, प्रेरणा, you can take up this example in ethics case study. तो कि ये दिखाता है कि कैसे, हाँ बात बोलो, आपके बात बोलो. नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे दिखाता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनका भी एक रोल होता है विद रिगार्डिंग टू द हाउ टू मेक द गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव. तो अगर ऑफिसर भी अगर ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे तो उससे एक सेंसिटिविटी और कंपैशन वो बढ़ सकेगा. तो बेसिकली कंपैशन एम्पैथी का एग्जांपल है ये विद रिगार्डिंग टू द इंक्लूसिव. मुझे यहाँ पे दो चीजें बोलनी है कि द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग शुड बी डन बाय द पब्लिक व्हीकल्स अथॉरिटीज, स्पेशली इन द बसेस में भी. आज के टाइम पे अब जब हम देखते हैं कि बसेस में भी इंक्लूसिव विंडोज और इमरजेंसी विंडोज और एक्सेसिबिलिटी डोर्स हैं, तो उसका भी एक मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हों. मेट्रोज में हो, मेट्रो भी, हाँ. और इसके साथ साथ जो एजेंसी है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म होता है जो एशियन पैसिफिक कंट्रीज को डील करता है. फिलहाल में इसमें 53 मेंबर कंट्रीज हैं और 9 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आई थिंक इन बैंकॉक में, थाईलैंड में. सो दीज आर सम लिटिल थैंक यू प्रवेश फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. So this also we have taken up ये ले as सकते, हाँ. National Dam Safety Act जो है, firstly National Dam Safety Authority is there. So they've been examining the sinking of the Piers Block 7, which is in this
particularly Medigada, which is Lakshmi Barrage of this Kaleshwaram irrigation project, जो कि तेलंगाना में located है. So it is being basically a 6-member एक expert team है. So it is basically यहाँ पे ये निकल के आया कि they faulted the planning and design of this project and stated कि एक combination of issues like basically around planning, design, quality control, operation, maintenance that have led to the damage. So basically during construction only अगर design में problem है, planning में problem है, so वहीं से problem ही वहीं से start हो रही है. So this is the outcome of the team basically who was visiting this thing. So ये specifically उन्होंने mention किया. Apart from this हम बात कर चुके हैं. Otherwise also if we talk about hilly states में, we're talking about Sikkim में जो glacial lake outburst phenomena हुआ, and वहाँ पे भी this concern was highlighted. Yeah, it came to our basically our knowledge कि dams के location या जो hydroelectric power projects construct किए जाते हैं hilly terrains में, they are also very important when it comes to the safety. And उसके दौरान हमने पूरा जो नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट है, वी हैड अ प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस अराउंड दैट. सो उसमें ये निकल के आया था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट वहीं पे मेजर प्रॉब्लम आ रही है. सो दैट्स देयर. और कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो? नो मानसी. मैं बोलता हूँ कि जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री, एंड ये टाइमली वर्कशॉप्स करती है, सेमिनार्स करती है और इंस्पेक्शन, इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं बाय द नेशनल डैम एक्ट 2021 की इंस्पेक्शन कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी कर सकती है जो डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रोविजंस है उनका. एंड इन द event of any irregularity shown and seen by this authority, it can take the suo motu actions also. ठीक है. और एक और कंसर्न रहता है कि एक यहाँ तो हम डिजाइनिंग और प्लानिंग के बारे में बात करें, एक वहीं से कंसर्न इमर्ज हो रहा है. एक और कंसर्न है कि इंडिया में देयर आर मोर नंबर ऑफ 100-year-old डैम्स. सो हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर सेफ्टी कि वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज रेजिलेंट या operating that particular dam is safer for the environment in the surrounding area. So that is also another thing. कि हम कैसे अब उस चीज को हैंडल करने वाले हैं, हाउ वी आर टैकलिंग एंड प्लानिंग फॉर दैट आल्सो. तो इसमें मुझे लगता है जो हमारी डैम अथॉरिटीज हैं उनको टाइमली रिजुविनेशन करना चाहिए, और जहां भी उनको लगता है कि काम करने की जरूरत है, अगर मेंटेनेंस और ऑपरेशन है, ये 2 डिपार्टमेंट डैम अथॉरिटी के अंडर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि द होल सेफ्टी ऑफ डैम डिपेंड्स ऑन दीज 2 एस्पेक्ट्स, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन. इसमें वी कैन टॉक the personnel, especially the engineering staff capabilities and their state-of-the-art skills, which can monitor the dam safety in condition with the climatic events, so as to have some precautionary measures in case of any emergency. ठीक है. और एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी अगर यहाँ पे केस स्टडी की बात करें रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू ओनली, तो मुल्ला पेरियार डैम जो है दैट इज लोकेटेड इन केरला, बट दैट इज ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय तमिलनाडु स्टेट. सो दैट इज आल्सो मोर देन 100 years old. सो वहाँ पे केरला फील्स की इट इज सेफर टू ऑपरेट, बट वेयर एज तमिलनाडु स्टेट्स की अगेन वी नीड टू लुक इनटू कि जो इवन वाटर रिजर्वायर से जो प्रेशर क्रिएट होता है, क्या वो स्ट्रक्चर जो है अभी करंट स्टेट में जो है वेदर इट कैन हैंडल दैट और नॉट. तो मतलब इट इज अ वेरी बिग डैम, सो सेफ्टी भी और जो रिस्क भी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. सो दिस इज पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ दिस थिंग. So we see Zika virus outbreak. Firstly, हम देख रहे थे कि it was more restricted to the state of Kerala, but now it is again spreading and it has been again found in the 5 villages of Karnataka also. So that comes under surveillance after the Zika virus outbreak. So it is a zoonotic disease. This National Institute of Virology is there. बोलो. हाँ, मतलब जीका वायरस है कैसे, अगर इसको बताए. नहीं मतलब है क्या, मतलब जीका वायरस इज जीका वायरस? नहीं, it is a zoonotic disease which spreads कैसे from होता है. rats हाँ, to human transmission हाँ, possible है. ओवरऑल इसके बारे में मतलब I जीका think वायरस it बेस. बोले नहीं बताता हूँ. आई थिंक इट इज पोज्ड बाय
मॉस्किटो आई थिंक, जिसका नाम होता है एडी एजिप्टी, एंड एक और होता है। तो मॉस्किटो लेड एक जूनोटिक डिसीज होती है जीका वायरस, जो कि और यही जो हमारे जो एडी स्पीशीज है, यही हमारे यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं। तो आई थिंक जीका इज आल्सो स्प्रेड बाय देम। एक और मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो एडिस एजिप्टी है, जो डेंगू फैलता है वो भी एक सुबह के दौरान और सुबह और दोपहर तक ही फैलता है बेसिकली। वैसे ही ये भी जीका वायरस भी वैसे ही होता है कि। ड्यूरिंग द और दूसरा एक सनलाइट। और, हाँ, और दूसरा है कि डेंगू, डेंगी या डेंगू जो भी, इट कैनॉट पास थ्रू सेक्स या फिर मदर टू फीटस नहीं होता है, लेकिन जीका वायरस कैन ऑल्सो पास थ्रू हम्म। मदर टू फीटस। और जो डिफॉर्म्ड फीटस, स्टिल बर्थ, ये सब कॉन्सिक्वेंस है जीका वायरस का। तो एबनॉर्मलिटी हो जाता है उससे। तो So, ये Oshik, I have न्यूरोटॉक्स। a हाँ। subsequent question to you. What are the few institutional steps the government of India is taking to deal with this? First of all, National Institute of Virology have been roped in Kerala and also in Karnataka for segregating the various sample, so that how to take measures against them. Second would be the quarantine of the patient in the specific area. Third Sorry, would be the development. quarantine. हाँ, क्वारंटाइन, हाँ, क्वारंटाइन करना Okay. चाहिए पेशेंट को, जो हो रहा भी है केरला में भी। एंड थर्ड वुड बी द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन फॉर द वैक्सीनेशन एंड अदर पर्पस, बिकॉज वैक्सीन अवेलेबिलिटी इसका है नहीं जीका वायरस का, तो उसका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म। Okay. Thank you so much. देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर द जीका वायरस, तो ये इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन भी नहीं और वैक्सीन भी नहीं है तो। Mansi, I think we can take this governor article in the left hand side. Okay, so we've been talking about कि पहले हमने तमिलनाडु स्टेट में देखा, and then it is also witnessed in states like Kerala, Maharashtra, Punjab also. कि जो governor of the states हैं, they are basically blocking or they are not giving their consent to the bills that have been passed by the state legislative assemblies. So this is basically violation of the constitution provisions also, and at the same time we have also talked about कि governor की जो discretionary powers हैं, ऐसे incidents में ये देखा गया है कि governor they kind of assume कि it is their discretionary power, although it is not constitutionally valid or it is ultra vires the constitution. So that is the case, and this case has been taken up to Supreme Court by the respective states chief ministers as well. So let's see what would be there, but again there needs to be this clarity when it comes to the onus on the governors about their constitutional responsibility. So that needs to be clearly understood and defined to them. एंड स्पेसिफिकली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द मैनर इन व्हिच द ऑफिस ऑफ गवर्नर इट इज फंक्शनिंग. सो दैट इज द थिंग एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड. Okay, so Article Oshik, 200 of the आप मुझे बताइए Constitution कि contains significant constitutional content, would have driven into them a sense of immediacy in considering the bills. So that is the Constitutional Article 200. Okay, now you can ask your question, Pravesh. okay, so Oshik, आप मुझे ये बताइए that what are the four common and most prominent areas over which the governor is getting criticized so much across the states? Contemporary आप examples बताइए मुझे. First, the example is of issue of vice chancellor between the state of Tamil Nadu and Tamil Nadu governor, and also in West Bengal. Second would be the issue of reserving will for the president. This has been seen in the Jharkhand and in Kerala. Third would be the case of interference by the center through the governor in the matter of legislative purposes. तो ये थर्ड इंस्टेंस हो गया. And here I would also like to add up one thing कि तमिलनाडु स्टेट में देखा गया तो जो वोट ऑफ थैंक्स स्पीच रहती है उसमें भी गवर्नर एड्स अप हिज ओन आइडियाज, मतलब जो स्पीच में क्लियरली मेंशन्ड है
going beyond that या उसमें जो mentioned है उसको ना वैसे present करना, that was also seen particularly in the state of Tamil Nadu. So that also led to an issue there. So across the India, Ushik, we have a convention that the governor of any particular state is given the ex official authority as the chancellor of the universities. But why specifically Tamil Nadu is having any issues with this? Apart from Tamil Nadu, West Bengal is also having an issue because in the matter of employment, appointment of the staffs and other of offices in the university, the role of governor is very important. But the ruling party thinks that the role should be theirs. That's why there is a problem. मतलब क्योंकि सेंटर एंड स्टेट का जो पार्टी है वो डिफरेंट इन पावर, तो ये एक पहला हो सकता है इशू. बेसिकली यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्युइटी जो एग्जिस्ट करती है, बेसिकली कोई फिक्स टाइम फ्रेम अपॉइंटमेंट में in which हाँ गवर्नर्स को इवन असेंट देना पड़ता है टू द बिल्स दैट हैव बीन सेंट टू देम. सो ये कहीं ना कहीं इन अ वे फिर वो एम्बिग्युइटी आ जाती है, तो गवर्नर इन अ वे मिसयूजेस दिस काइंड ऑफ लूप होल, हम बोल सकते हैं इसको. No, I think Mansi, if the governor is having this, position currently, the similar kind of concerns are there for the governor. But if the state governments get the similar kind of opportunity, similar concerns will also be for those. पार्टीशनशिप की तो बात है, गवर्नर जो है पार्टीशनशिप करेंगे. हाँ, कहीं ना कहीं इसमें अगेन पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है इन द वे गवर्नर्स दे perform their functions and responsibilities. But since constitution की भी अगर हम बात करें, article 200 mentioned है, so that speaks कि as soon as possible governor को consent देना चाहिए. अब वो proper time limit नहीं exist करती. So ये जो मैं ambiguity वाला element highlight कर रही हूँ, इस context में highlight करने की कोशिश कर रही हूँ. So I think from my side, the solution would be that governor, the time he's appointing the staff and the personnel of the universities as being a chancellor, he should take the consent as a collegium of the vice chancellors also, as well as of the state government officials, whether it is a CM or the cabinet. And center state relations की अगर हम बात करें तो we have the recommendations by the MM Panchi Commission. So this is specifically center state relations के ऊपर है. So even एक और इशू जिसकी हमने यहाँ बात नहीं करी, that is जो गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं to the president about the state of affairs in a particular state. So president's rule की हम बात कर रहे हैं. So उसमें भी पंची कमीशन ने ये बोला था कि it shouldn't be basically जो government in power, incumbent government है, they should get their right to prove their majority in the house of a state. So मतलब arbitrarily यहाँ पे चीजें नहीं हो सकती है just because the governor has the power. तो मानसी, आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि जो गवर्नर होता है उसको पावर दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको रिपोर्ट देनी है एडमिन अफेयर्स की, लेजिस्लेटिव अफेयर्स की टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके बिहाफ पे जो आगे सेंटर से कोऑर्डिनेट होता है स्टेट्स का. वी हैव आर्टिकल 355, 365, 355, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के प्रोविजन है. तो अगर मान लीजिए गवर्नर कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैंगओवर हो गया है स्टेट में, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और इसके बिहाफ पे मैं रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को दे रहा हूँ और प्रेसिडेंट साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए, क्या ऐसा करने में स्टेट गवर्नमेंट क्या कई मतलब क्या कुछ कंसर्न उठा सकती है? क्या उसको पावर है भी उठाने की या नहीं, या फिर वो कैसे प्रूव करे कि लॉ एंड ऑर्डर है? हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर है. फर्स्टली तो जो रिपोर्ट गवर्नर सेंड करते हैं उसमें आप बेसिकली जार्गन नहीं यूज कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अंडर रिस्क. तो वहाँ पे क्लियर रीजनिंग मेंशन होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है इस चीज को इन देयर वर्डिक्ट कि यू नीड टू लाइक क्लियरली मेंशन व्हाट आर द रीजंस. अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसके पीछे रीजंस क्या है. सो दैट वुड प्रमोट मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इवन अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर. एंड जहां तक कि proving your majority is there. So there's simple mechanism which is present, the no confidence motion, या proving या that मेजोरिटी तो हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो कौशिक, आप का कुछ कहना है इस पे? कौशिक? Okay, Mansi, so we can move now. Okay, we can proceed further. He's not audible right now.
So this is specifically related to IITs. They are overcommitted in crisis. So basically, foreign adventures, if we talk about, so branch campuses, IIT Madras, they've just opened up in Zanzibar, like foreign locations, they are opening up their campuses. Even IIT Delhi, it will be launching their programs from its Abu Dhabi campus 2024 onwards. So we often talk about कि even India में जो foreign universities के campuses है, that should be opened up. We are moving forward in the direction as far as the national education policy is concerned, 2020's policy. So we are seeing कि even जो हमारे indigenous and domestic education institutions, higher education institutions and universities, they're also trying to expand in this similar manner at the foreign locations. So एक ये even when we talk about the foreign relations or foreign policy of India, so this point can be added at the educational front. So we are seeing कि some of the screening test centers offered to the potential applicants, they were located not only Tanzania, like Africa, maybe we can talk about how Africa, maybe are trying to strengthen our relationship, educational relations. Ethiopia it is present, Nigeria, Kenya, Uganda, UAE, which have a strong presence of even Indian diaspora as well. So this is one area. And then when we talk about over expansion at home, so first IITs was established in 1950 at Kharagpur, West Bengal. So with 4 more following in the decade. So 1950 IITs, they were established in India. And most of these, okay, so India we are having different branches and at different locations, the IITs 2015, government expanded the IIT. बेसिकली मानसी मैं ऐड करता हूँ इसमें Okay, कि ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि आईआईटी को तो आप एक्सपैंड कर ही रहे हो, मतलब फ्रॉम ओनली 5 आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर एंड कानपुर, आप आज जा करके 23 आईआईटीज हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स। तो क्या उसके अनुसार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है? उनके अनुसार क्या उनका स्टाफ ग्रोथ हुआ है? उनके अनुसार प्रोफेसर का आपका क्वालिटी बढ़ा है? तो ये सब सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है आईआईटी के अंदर में, जो आज भी है। देखा जाता है कि जो बच्चे रहते हैं आईआईटी में, उनको सैंक्शन रूम है ओनली फॉर 2, लेकिन 3 लोग रह रहे हैं वहां पर। तो आप क्या क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं आईआईटी में? तो ऐसे सम चैलेंजेस है विच नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, बिकॉज आईआईटी इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए नहीं है कि इट इज अ हायर एजुकेशन फॉर द पीपल who have inclined towards the science and tech. तो बेसिकली 1,20,000 IITs जो आज ग्रेजुएट कर रहे हैं, और पहले सिर्फ आज से 5 साल पहले इसका आधा था, मतलब 70 के आसपास थे, 70-50 के आसपास थे। तो इतना स्पीड में इंक्रीज हुआ है। उनके अनुसार बाकी सब ब्रांच में इंक्रीज हुआ है, वो बात हो रहा है। बिल्डिंग क्वालिटी, मेंटेनिंग फैकल्टी क्वालिटी, अट्रैक्टिंग यंग प्रोफेसर कमिटेड टू आईआईटी एक्सेट्रा। तो हम ये बेसिकली चैलेंज है फिर आईआईटी के पर्सपेक्टिव से ना लेके, मतलब जनरलाइज करके ले सकते हैं कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में और क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं। सो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं नहीं, एक ओवरऑल जनरसी की, एक हाँ। रहता है ना कि एक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है ऐसा क्रिटिसिज्म है मतलब गवर्नमेंट का इसमें, कि उनको लगता है कि आईआईटी नाम अगर हो जाएगा तो मतलब सब सेम हो जाएगा। हाँ, जो तो ब्रांड उसने वैल्यू। उन्होंने अपग्रेड कर दिया हर चीज आईआईटी को, तो उससे क्या होता है, डायल्यूशन ऑफ आईआईटी होता है लॉन्ग टर्म में। और जो अगर आपका, कि उसमें भी बहुत रिजर्वेशन आ गया है, बहुत मतलब कि वीमेन का भी 10-20% हो गया है, या फिर बाकी से इंक्लूसिविटी ठीक है स्टेम पॉपुलेशन में, लेकिन सीट तो बढ़ना चाहिए ना। सीट भी बढ़ रहा है लेकिन आपका रहने का जगह ही नहीं है वहां पर, हाँ, ठीक है। वो एक चैलेंज है। और दूसरा कि लोकल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, तो डिफरेंसेस है ना वो बढ़ जाते हैं बाकी जगह पे। तो उसको अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बीआईटी मेसरा हो गया, या फिर आप दिल्ली में देख लोगे डीटीयू हो गया, जैसे फेमस इंस्टीट्यूशन है अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, जो ज़्यादा अच्छे हैं कुछ आईआईटी से। तो सिर्फ आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ब्रांड भी इंपॉर्टेंट है जो इंडिविजुअली पता हुआ, लाइक जैसे बिट्स प्लान ही हो गया वैसे कि। हाँ। Okay, so RBI has been crowned the business line change maker of the year for the role it played during COVID-19 pandemic. So specifically अगर हम इस time period से बात करें 2020 onwards, so we've been seeing कि RBI firstly we were seeing जो major challenge था, that was inflation, that was also supply side disruption की वजह से we saw inflation started increasing. So RBI का क्या role रहा है
औशिक, आप पहले बताइए कि क्या आरबीआई का रोल रहा है अराउंड दिस टाइम पीरियड? RBI had 2 to 3 roles. First of all, to maintain the fiscal prudence, वो एक challenge था. Second would be to maintain the sustainability of the inflation in the country, and third would be to attract the FDI through strict foreign policy control. क्योंकि foreign तो policy हाँ, monetary आरबीआई policy control, क्योंकि स्टेप्स क्या लिए हैं क्या आरबीआई? हुआ, हाँ, स्टेप्स पहली बात है कि रेपो रेट है उसको बढ़ाया गया, पहले घटाया गया ताकि इन्फ्यूजन रहे इन द मार्केट, उसके बाद आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक उसको बढ़ाया गया ताकि जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन हो रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्सेस मनी सप्लाई उसको रिड्यूस किया जाए, तो उसका स्टेप किया गया था। हाँ, और फॉलोइंग राइट। अब उन्होंने रिकमेंड भी किया कि रैशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम्स होना चाहिए बाकी सब में, और जो पुराने स्कीम्स थे जो एडहॉक मेजर्स पे लिया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और उस समय मतलब कि 2 साल की पीरियड में उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो सरकार ने 2023-24 बजट के अंदर में सब जगह एक्सपेंडिचर थोड़ा कम किया, उसको फिर कैपेक्स में डाला गया, तो रिकमेंडेशन भी देते हैं RBI। हाँ, तो हाँ, मेजर चैलेंज मतलब जो स्टेप्स लिए गए, चैलेंजेस तो हमने बात कर लिए। फर्स्ट तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे हैं सिंस 2020, रेपो रेट इज एट 6.5%, सो दैट्स देयर। एंड इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वी हैव बीन सीइंग कि कितना ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत मैसिवली हमने ग्रोथ देखने को मिली है। सो विद दैट वी हैव बीन seeing कि UPI के जो even in terms of value and volume also जो number of transactions are that have increased exponentially. So safety, that is very important, and around that also we are now introducing the central bank digital currency also. So एक ये major initiative है, although ये अभी it has not been 100% implemented when we talk about CBDCs. So that's there. And इसके अलावा आपने बात करी है rationalization की। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक मेन चैलेंज और चीज भी हमें समझ में आई है, स्पेसिफिकली ये इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने भी मेंशन करी है कि मॉनेटरी पॉलिसी इट इज मोर इफेक्टिव इन कर्बिंग द डिमांड साइड इन्फ्लेशन. सो because this time we were seeing supply side inflation, so comparatively it has been not that effective in curbing the inflation, but although it some role is there of how repo rate has been changing in terms of controlling and regulating inflation to a certain extent, but इतना ज्यादा effectiveness नहीं देखा गया. So supply side inflation को regulate करने के लिए fiscal policy का role ज्यादा रहता है. तो मानसी, इसमें मैं आप दोनों के साथ कुछ ऐड करता हूँ कि आरबीआई ने और क्या मेजर्स लिए थे स्पेसिफिकली। तो रेगुलेटरी पैकेजेस जो थे अलग अलग इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स के लिए वो जारी किए गए थे। जो कंपनीज के लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का जो प्रोटोकॉल है उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था। पीएम केयर्स फंड के अंदर जो रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट किया गया था बाय द आरबीआई, जिसमें रुपी की अरेंजमेंट अलग अलग कंट्रीज के साथ। उसके बाद जो बासल 3 के नॉर्म्स थे लिक्विडिटी कवरेज के, उनमें थोड़ी ढील दी गई थी। असेट रिकंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा देखने को मिला था कि आरबीआई ने किस तरीके से लिवरेज दी थी लोगों को। उसके बाद एफपीआई के लिए और एफडीआई के लिए स्पेशल वॉलेंटरी रिटेंशन रूट लाई थी आरबीआई, जिसके अंदर एफपीआई की जो इंडिया में जो एडवेंट था उसका आरबीआई का वो बढ़ा कोविड टाइम पे भी। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो रिटर्न्स थे उनकी टाइम थी उनको एक्सटेंड किया गया। और इसी के साथ साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स को टर्म इंटरेस्ट पे लोन दिए गए ताकि वो आगे जो है रिमोट एरिया तक सप्लाई करे। और पीएम गरीब कल्याण योजना है, इसके अंदर जो हमारा एफपीओ और जो हमारा फूड डिपार्टमेंट जो फूड सप्लाई कर रहा था उसको आरबीआई की तरफ से एज अ लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो ये कुछ अलग मेजर्स है। Or of late, when we talk about even managing the liquidity also, so withdrawing rupees 2000 notes from the circulation, that is also in this context only, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं inflation को regulate करने के लिए step लिया गया है. So we talk about कि क्या liquidity crisis है या surplus है. So एक concern ये बीच में अभी highlight हुआ था कि liquidity crisis है या the supply is reducing, so that is not there. Sufficient amount of liquidity condition prevails in the economy. So
That was also one thing. And yes, जो RBI ने moratorium भी announce किया था specifically during the initial years of COVID-19. So that was relief measures, दो short term relief measures लिए गए थे. प्रवेश, इसमें मेरा Yes, क्वेश्चन है आपसे कि CBDC है और UPI में क्या डिफरेंस है? CBDC is central bank digital currency, and UPI is a payment mechanism. So CBDC is given by the RBI, and UPI is given by, I think, NPCI. UPI is a payment mechanism through which the payment happens. So basically, UPI is a merchant which settles your payment with one party to the other party, and CBDC is a kind of currency that is a digital currency on the similar lines of crypto, but that is legalized. Crypto is unlegalized, and that runs on the blockchain technology under the supervision of the RBI. हाँ, तो यहाँ पे तो ज्यादा बैंक का तो इंक्लूजन दोनों में, हाँ. बैंक को तो दोनों में रहेगा ना Sorry. प्रवेश? बैंक का तो इंटरफेरेंस दोनों तरफ से रहेगा ना, CBDC में भी और UPI में भी. हाँ, so I am agreeing with this. नहीं, यहाँ पे क्लियर देखिए, डिफरेंस मैं एक बता लाइन बनूंगा कि मैं बताता हूँ, मासी आप ऐड कर देना तो गलत होगा. तो UPI में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ मनी इज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, और वन पार्टी टू अनदर थ्रू बैंक्स. तो बैंक वन और बैंक टू है, तो ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर UPI में होता है. UPI पेमेंट मैकेनिज्म अंडर NPCI, जो आपने बता दिया. सेकंड जो CBDC हो गया, इट विल ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर थ्रू वॉलेट अकाउंट. तो वॉलेट, तो बैंक का इसमें इंक्लूजन ही नहीं है बेसिकली. बैंक टू बैंक नहीं हो रहा उसमें, वॉलेट टू वॉलेट हो रहा है सिर्फ. अगर एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है ये वाला है. बाकी तो आपने बताया कि ब्लॉकचेन हो गया, फिर RBI हो गया, वो सेकेंडरी एक डिफरेंस हो गया. टर्म, हाँ, टर्म जो आपने यूज नहीं करी यूपीआई को डिफाइन करने के केस में, या डिफरेंस भी जब आप बता रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो स्पेसिफिकली कि यूपीआई एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो. सो इट इज अ मीडियम ऑफ पेमेंट. एंड हम्म. सीबीडीसी हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो एक टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. सो एक माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में. एंड देन वी कैन आल्सो टेक अप दिस क्वेश्चन आल्सो कि सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है. हाँ, कि CBDC बेसिकली रेगुलेटेड बाय द RBI, whereas cryptocurrency is not regulated by anyone. It is deregulated. और दूसरा है कि CBDC कैन बी मॉडिफाइड कि टू पर्टिकुलर सूट द टारगेट सेट बाय RBI और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी. उनको स्कीम देना, उसी के हिसाब से वो पैसे दे सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी मॉडिफाइड. तो ये होता है. तो CBDC can be transferred from any wallet through use of UPI or any other standard which can be mandated by the RBI. But cryptocurrency needs cryptocurrency exchange to transfer from one wallet to another. तो वी तो कैन से हाँ, क्रिप्टो करेंसी ज्यादा वॉलेटाइल है. वोलेटाइल है, ज़्यादा ओपेक है एज कम्पेयर टू CBDC, और रेगुलेटेड नहीं है ना वो एक नहीं क्रिप्टो बोल करेंसी, सकती तो उसमें क्रिप्टोज को, हम क्रिप्टोज